Today we will discuss about the electromagnetic force. Electromagnetic force. Why it is called as the electromagnetic force? Because it consists of the electric field as well as magnetic field. Stay with me. What is electromagnetic force? The electric and the magnetic forces are the two forces of the electromagnetic force. बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के दो फोर्सेस आते हैं, इसमें एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. The force of attraction or the repulsion between the two electric charges or the charged bodies is known as electrostatic force. Electrostatic force उस force को कहा जाता है जिसमें क्या होता है force of attraction या force of repulsion between the two electric charges, ठीक है, is called as electrostatic force. Electrostatic force is an interaction between the charges at rest. बच्चों it is an interaction between the charges at rest or rest we say that it is also called as a static. That is called as a static. That means rest. Electric charge is governed by the Coulomb's law. Electric charge को हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसे? Coulomb's law से, ठीक है. The electrostatic force between the Q1 and Q2. बच्चों यहाँ पर हम दो चार्जेस लेते हैं Q1 and the Q2. इनके दरमियान जो हम डिस्टेंस रखते हैं separated by distance r in air is directly proportional to the magnitude of the charge Q1 Q2 and the inversely proportional to the square of the distance between them. The electrostatic force between the two charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product magnitude of charge Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them. That is F is directly proportional Q1 Q2, or we say that it is inversely proportional to the square of the distance between them. That the force between the two charges is inversely proportional to the R square. Electrostatic force between the two electric charges Q1 and Q2 held at a distance or part in vacuum. जब हम वैक्यूम की बात कर लेते हैं, वैक्यूम उस वहां उसको कहते हैं जहां पर एयर एब्सेंट होता है, नो एयर, दैट इज कॉल्ड एज अ वैक्यूम. तो वहां पर जब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 निकालना होगा, वी हैव टू कैलकुलेट F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. बच्चों दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन नॉट. दिस इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन नॉट. वेयर एप्सिलॉन नॉट इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. इसका जो वैल्यू होता है दैट इज 8.854 into 10 power minus 12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है. F is directly proportional Q1 Q2 R square Q1 Q2, that is equation first. F is inversely proportional to the R square according to the Coulomb's law of electrostatics. Combining the equation first and second, that F is directly proportional Q1 Q2 divided by R square. F is equal to proportionality को हटाने के लिए हम यहाँ पर constant use कर लेते हैं, that is called as a K, and this K is called as electrostatic constant. F is equal to K के बदले हम लिख सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. Where 1/4 epsilon naught 4 pi epsilon naught is equal to जो K का वैल्यू होता है इन द SI सिस्टम दैट इज 9 into 10 power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम इनवर्स स्क्वायर, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट K, या तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है. सो दिस इज टोटल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. नाउ द प्रॉपर्टीज एंड द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. Electrostatic force between the two charged bodies is equal in magnitude but opposite in direction. बच्चों जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के दरमियान जो होता है ये हमेशा इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड का सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने चार्ज Q1 and Q2, देयर आर द टू चार्जेस एट रेस्ट. द चार्ज F12 is equal to -1 F21. What does this minus indicate? This minus indicate that the force between the two charged bodies, electrostatic force between the two charged bodies की जो डायरेक्शन है वो क्या है अपोजिट, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड की बात अगर हम कर लेंगे दे आर इक्वल. फॉर एग्जांपल इट इज अ फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1. फोर्स यहाँ पर जो 1 2 यानी सेकंड चार्ज दो चार्ज जो फोर्स लगाता है फर्स्ट चार्ज पे, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2. उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ पहला जो चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या कर लेता है फोर्स एक्सर्ट, ठीक है. So F12 is equal to minus F21. That is force of 2 due to 1 is always equal to negative force of 1 due to 2. Now the characteristics of the electromagnetic force. ये important है बच्चों, ठीक है. पहले ही जब हम बात कर लेते हैं इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ. कॉलम ने यही कहा था कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस.
and inversely proportional to the square of the distance between them, that is f is inversely proportional to the r square। तो इससे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये कौन सा लॉ ओबे कर लेता है, इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। नेक्स्ट, इट मस्ट बी अट्रैक्ट टू अदर रिपल्शन इन नेचर। बच्चों अगर यहाँ पर क्या प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज रख लेंगे तो आपस में क्या कर लेंगे, रिपल्शन कर लेते हैं। जब हम प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखते थे तो क्या होती है, अट्रैक्शन। तो पता चला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड है, इट शुड बी अट्रैक्ट टू अदर रिपल्सिव इन नेचर। थर्ड, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स। फोर्थ, यहाँ पर अगर हम फील्ड पार्टिकल की बात कर लेते हैं तो क्या होते हैं, फोटॉन्स। फोटॉन इज द फील्ड पार्टिकल इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का अगर फील्ड पार्टिकल देखा जाएगा दैट इज कॉल्ड एज अ फोटॉन। ये नीट में इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फील्ड पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो वहां पर आपका जो ऑप्शन होगा दैट इज फोटॉन, दैट इज फोटॉन। इट इज अबाउट 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात कर ली जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻36 टाइम्स ग्रेटर देन है। तो यहाँ पर भी और एक ऑब्जेक्टिव निकला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ये 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज अ सेंट्रल फोर्स एज वेल एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है एज वेल एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बच्चों अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल्स। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटम के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियस होता है, सेंटर ऑफ द एटम, जो वहां पर इलेक्ट्रॉन की जो मोशन होती है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की मदद से ही क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम्स के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर लेते हैं। टू और मोर एटम्स हेल्ड टुगेदर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू फॉर्म द मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, किसे, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म द मैटर ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, मैटर बना लेते हैं, और यही मैटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से। इलास्टिक फोर्स आर आल्सो एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बच्चों जो भी इलास्टिक फोर्सेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। बॉन्डिंग फोर्स रिस्पांसिबल फॉर द केमिकल रिएक्शन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्डिंग होती है वहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो यूज होता है, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। कॉम्ब अट्रैक्टर्स। बच्चों यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो यहाँ पर ये कॉम्ब होता है, ठीक है, कॉम्ब अट्रैक्ट्स द ड्राई हेयर व्हेन रबर ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम इस कॉम्ब को ड्रॉप कर लेते हैं इसके बाद इसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन हो जाती है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, इस कॉम्ब को ड्राई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये कॉम्ब क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है पीसेस ऑफ पेपर, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और जब हम ये कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये क्या कर लेगा, रब कर लेता है, ठीक है, इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज आल्सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नॉर्मल फोर्स ऑफ ए बॉडी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्प्रिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। These are the examples of the electromagnetic force. Electromagnetic force means it consists of the electric field as well as magnetic field. So this is total about the electromagnetic field. Electromagnetic force, electromagnetic force, properties of the electromagnetic force, characteristics, features of the electromagnetic force and examples of the some electromagnetic force. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और हमारी चैनल वन एकेडमी पे क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।